Assalamu alaikum everyone. Welcome to another lesson. Today we are going to talk about electronic configuration. Now, how exactly are electrons arranged inside the atom? And are they physically there or are they just figment of our imagination, or is it just an abstraction that we have कि हाँ electrons होंगे तो हमारी explanations बहुत आसान हो जाएंगी. What exactly is happening here? That's what we are going to talk about. Obviously in science we don't talk about things without having a proof. So इसका proof, इसका evidence कि जो भी आज मैं आपको साथ share करूँगा, this we will discuss in another lesson. But for now, let's just focus on what electronic configuration is. And we all know electrons होते हैं, electrons exist करते हैं, electrons are inside the atom and they're usually equal to the number of protons क्योंकि atom होता है neutral. So if you want to figure out the electrons, just take protons minus charge, and usually if charge is 0, the electrons will be equal to protons. अब electrons को arrange करने के we have different levels. The very first level is what we call shell. Now that shell is basically a level of energy that we have, and it goes like this. First of all, these are called principal energy levels, और इनके numbers होते हैं. We give them n, which is 1, 2, 3, so on and so forth. It's like just like your grades कि आप grade 1 में हैं, grade 2 में हैं, grade 3 में हैं, eventually आप A1 में आ गए, आप A2 में चले गए. All of that is based on your level of knowledge. So just like that, these are based on their level of energy. Another important thing for shells is that they're not equally far apart. तो अगर आपके पास let's suppose ये एक nucleus है, okay, so the first shell that you have, let's say that is over here, then it is possible कि जो दूसरा shell होगा वो यहाँ नहीं होगा, इसके बिल्कुल इससे बड़ा होगा. But the third shell might not be equally far apart from this one कि जितना दूसरे का फर्क है उतना ही उसका हो सकता है वो उसके close आ जाए, and the next one will be even more closer to this previous one, and that is they become closer and closer and closer as the number increases. Okay, so that is what these are, and these shells, these levels of energy, they are all based on these how far they are from the nucleus and all that. उनकी energy equally far apart नहीं होती. Okay, so that's another thing कि वो equally far apart एक दूसरे से नहीं होते. अब यहाँ पर 1, 2, 3 किस तरह से होगा? Basically, this shell which is right here, this will be 1, 2, 3, 4, and they keep on going. In fact, they keep on going till infinity. There is no limit to how many shells an atom can have. But हाँ, जितने दूर आप चलते जाएंगे उनके बीच का gap कम होता जाएगा. So shells get closer as the number grows. So as they go further away from the nucleus, as they become bigger and bigger and bigger, उनका नंबर जितना बढ़ता जाएगा, shells का आपस में फर्क उतना कम होता जाएगा. Similarly, shells have capacity. एक shell में कितने electrons आ सकते हैं उसकी capacity है, and that is n square pairs of electrons, जिसको हम 2n square electrons भी बोल सकते हैं. E minus, I told you, it's basically how many electrons you have. Okay, Assalamu alaikum. Yeah, so we have these shells. Now here's the thing. Not all shells are equal to each other. Not all shells are just like the same. Basically, every shell has another division of energy जिसको हम बोलते हैं subshell. Okay, so shells के तो principal energy level हैं या principal quantum numbers हैं, but उनके अंदर subshells होते हैं. They are every energy level, every shell has further subshells, sublevels, जिनको हम बोलते हैं S, P, D, F. S is basically one that has a spherical shape, और हमारे पास S एक ही तरह का होता है, which is a sphere. Okay, so it's like a sphere, goes like this.
देन वी हैव पी. पी तीन तरह का होता है. पी इज अ लोब विच गोज लाइक दिस और लाइक दिस or like this. Basically, this is along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis. So you know we have these three axes और उसकी वजह से इनके हमारे पास different levels इस तरह से. This is x, y, this is similarly y, and this is x, y, and z. Of course, any of these can be x and any of these can be y. The third one is D. D के 5 shapes होती हैं, ठीक है, एंड एफ की 7 शेप्स होती हैं. इनफैक्ट डी में हमारे पास 2 तरह की फर्दर डिविजन्स भी होती हैं. डी में हमारे पास 3 तो शेल्स इस तरह से होते हैं कि दे आर बिटवीन द एक्सिस एंड देन देयर आर द वंस दैट आर अलोंग द एक्सिस. ओके, सो डी सब शेल में हमारे पास 5 शेप्स हैं एंड ए एस वाले स्टूडेंट्स को दे डोंट नीड टू नो दिस, बट A2 वाले स्टूडेंट्स do need to know these dimensions. So here's how it goes. So there are 2 categories in there. There's one that are along the axis. So I'm going to draw the axis here. So these 2 that are along the axis, they go like this. So one is like this, very similar to P, except यहाँ पर एक circle होगा. So this is Z. और इसी तरह हमारे पास दूसरा होगा which is like this. So ये D के 2 हैं and these are along the x and y axis. Similarly, we have 3 others which are between the axis. तो हमारे पास अगर ये axis हैं, then we have these that are between the axis. So अगर एक x है एक y है तो ये उनके मिडल में होंगे. सिमिलरली हमारे पास अगर ये x है और ये z है तो ये x और z के मिडल में होंगे. सॉरी. एंड सिमिलरली इफ देयर इज y एंड z तो ये y और z के बीच में होंगे. Okay, so these are the 5 different axes. Now these ones are called, so as you can see over here, this one is called px, this is called py, and this is called pz. Okay, and these ones have, there are 5 different ones. इसका नाम होता है z squared, इसका नाम होता है x squared minus y squared. This one is xy, this one is xz, this one is yz. So we have different ones. So this will be dz squared, this is dx squared minus y squared, this is dxy, this is dxz, and this is dyz. The important bit to remember is the shape of every one of them. So in A1 you need to know the shape of S, you need to know the shape of P. In A2 you need to know the shape of D. F के अंदर 7 होंगे which you don't need to know. Now look at this number here, this pattern here. S has 1, P has 3, D has 5, F has 7, and if there was a G that we found, we haven't found any atom with G, लेकिन वो फिर इसी तरह से 9 होगा. F की शेप हमें A levels में देखने की ज़रूरत नहीं है. Alright? Yes, this is X and Y axis. Yes. Okay, so हमारे पास ये 5 डिफरेंट हो गए और इनमें से 2 हमारे पास आर along the axis and these are between the axis. Okay, so these are the 2 further divisions of the ones in D, and this is only for A2 students, not for A1 students at the moment. Alright, so we have S, which is a sphere, we have P, which is px, py, pz, we have D, which has this, and we have D के अंदर further 5 divisions. So these are subshells. So अब shell हो गया और shell के अंदर subshell हो गया. Okay, these subshells, sure they have these shapes, और ये shapes क्या हैं? These shapes are basically orbitals. Okay, orbital is the place where electron actually exists. इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास शेल जितनी एनर्जी होती है. जैसे आप ग्रेड 11 में हो या आप ग्रेड 12 में हो या आप ग्रेड 13 में हो, तो ग्रेड 11 कोई रूम नहीं है,
ग्रेड 11 इज जस्ट एन आइडिया, जस्ट अ थॉट कि आपको इतना आता है कि आप ग्रेड 11 के स्टूडेंट के बराबर हैं. ऑल द ग्रेड 11 स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ बेस लाइन नॉलेज जो उन्होंने ग्रेड 10 के एग्जाम में प्रूव किया कि हमें ये आता है. ग्रेड 12 के बच्चों ने ओ लेवल्स के एग्जाम के बाद प्रूव किया कि उनको ओ लेवल्स के जितना आता है. सो नाउ दे आर एलिजिबल फॉर ग्रेड A1. सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो भी ये लेवल्स ऑफ एनर्जी है ना, these are basically telling us that this is the baseline energy and this is how much energy this electron might have. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये कोई फिजिकल जगह है जहाँ पे एग्जिस्ट करता है. नहीं, द फिजिकल स्पेस वेयर इट एक्चुअली गोज, जैसे आपका फिजिकल क्लासरूम होगा जहाँ पे आपके A1 की क्लासेस होती होंगी, जस्ट लाइक दैट वो आज स्कूल रूम बदल दे तो आपकी क्लासेस कहीं और होना शुरू हो जाएंगी, बट आप अभी भी A1 में रहेंगे. Because A1 has to do with your knowledge and the classroom has to do with your physical presence. So these shapes are about the physical presence of the electron. But the idea of SPDF, yeah, shell number 1, shell number 2, shell number 3, all of that is based on the energy of the electron. So electron के पास energy है और वो किसी space में exist करता है. और जहाँ electron exist करता है उसको कहते हैं orbital. So orbital is the region of space. This is the actual space where the electron is. So this is the region of space where an electron is most likely to be found. What does this mean? It means that this is where you will find that electron and this is where you can easily look for it कि अच्छा ये electron यहाँ exist करता है. ठीक है, और उन ऑर्बिटल्स की स्पेसेस हैं, यानी कि अगर आप S वाले इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो इस स्फेयर में कहीं भी हो सकता है. हाँ, बाउंड्री पे होने का चांस ज़्यादा है. सिमिलरली P में अगर आप बात करते हैं तो इस दोनों लोब्स में वो कहीं भी हो सकता है, बट इस बाउंड्री पे उसका मिलना आसान है. D वाले इलेक्ट्रॉन्स इस 5 डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल्स में होते हैं. ये वो रूम्स हैं जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ फाइंडिंग देम ऑन द बाउंड्री ऑफ दीज ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स को हम हमेशा इस तरह से ज़रूरी नहीं है शो करवाएं, हम इनको एक बॉक्स नोटेशन में भी शो करवाते हैं. तो ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. नाउ वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Pauli's exclusion principle simply tells me, among other things, of course, इसकी exact reasoning में हम नहीं जाएंगे, but the conclusion that we have to get it from, that any orbital can accommodate up to 2 electrons. Okay, so your orbital जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते. एक आ सकता है, खाली भी हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. Pauli's exclusion principle का ये मतलब है, and so far this hasn't been violated. In fact, Linus Pauling actually, it's not Pauling, it's Pauli. He actually got a Nobel Prize, not for this, but for the overall research that he did. So इसका मतलब है कि हमारे पास 2 तरह के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं. तो होता क्या है कि जब वो 2 आते हैं तो वो येस दे डू रिपेल ईच अदर, एंड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट दे हैव अनदर थिंग विच इज कॉल्ड अ स्पिन. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन. तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन की 4 लेवल्स हो गए. सबसे पहले दे हैव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ द एनर्जी लेवल. सेकेंड दे हैव शेल्स, और वो ये शेल्स जो हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं. इन शेल्स के अंदर वी हैव सब शेल्स. SPDF वो ऑड नंबर्स होते हैं, तो S 1 होता है, P 3 होते हैं, D 5 होते हैं, F 7 होते हैं, G 9 होंगे. अभी तक G वैसे मिले नहीं हैं किसी एटम में. फिर उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. ऑर्बिटल वो फिजिकल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसकी चांस कि वो मिल जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट, दैट इज़ हाई ओवर देयर. सो ऑर्बिटल को या तो हम उसकी एक्चुअल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमारे पास ये शेप्स हैं, and AS people are supposed to know about S and P, and A2 people are also supposed to know about D. And then we can also represent orbital as a box, and then within them you can have up to 2 electrons, और हर इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है. हम स्पिन को it's likely a misnomer, क्योंकि एक्चुअली वो स्पिन नहीं है कि वो घूम रहा है या कुछ. It's just the quality that we have given it. And this spin is represented as an upward arrow or a downward arrow. Okay, so that's how we represent the spin. और एक एटम में
कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं हो सकते जिनके शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन चारों एक जैसे हो। तीन एक जैसे हो सकते हैं, दो एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसा हो सकता है। इन चारों में से हो सकता है दोनों ही सेम, कुछ भी सेम ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चारों के चारों सेम हो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के, ऐसा नहीं होता। और हमारे पास ये स्पिन जो है ये बेसिकली अपोज करते हैं एक दूसरे को, तो ऑर्बिटल में एक अपवर्ड वाला आएगा तो दूसरा डाउनवर्ड वाला ही आएगा। Alright, so this is how electrons are going to be. So let me list it down again. We have shell number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So far we have only found these electrons. Okay, 7 shells तक हमें atoms मिले हैं. That is the 7th period, and you will look in your data booklet कि हमारे पास periodic table में 7 periods होते हैं. Okay. Then within them we have S, और 1 में एक ही और सब शेल होगा, सेकंड में 2 सब शेल होंगे, थर्ड में 3 सब शेल होंगे, फोर्थ में 4 सब शेल होंगे, फिफ्थ में 5 होंगे। बट अभी तक हमें कोई ऐसा मिला नहीं है कि जिसमें G हो, इस वजह से हम इसको अभी छोड़ दें। इनफैक्ट हमें 5F से बड़ा एटम भी अभी तक नहीं मिला। मतलब 6 में कहने को तो 6 होने चाहिए, FGH होना चाहिए, और इसमें FPDFGHI होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एटम ऐसा नहीं मिला जिसमें G हो, या इनफैक्ट कोई 6F वाला भी नहीं मिला। हमें 7F वाला भी अभी तक नहीं मिला कोई एटम, इतना बड़ा कोई एटम अभी तक मिला ही नहीं है। तो जो एटम्स हमें मिले हैं ना वो 4F या 5F तक जाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितना बड़ा शेल होगा और उसका जितना बड़ा सब शेल होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इट्स नॉट कि हर एक में 2 आते हैं तो वो 2 ही होंगे, बेसिकली हर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 2 आते हैं, और हर सब शेल के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर्स में, तो S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में 5 ऑर्बिटल हैं तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में 7 ऑर्बिटल हैं क्योंकि ऑड नंबर चल रहे हैं ना, तो F में 7 ऑर्बिटल है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करते हैं? फॉर दैट वी यूज व्हाट वी कॉल ऑफ-बा प्रिंसिपल। ऑफ-बा प्रिंसिपल सिंपली मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट फर्स्ट। तो अब हमें देखना है कि इनकी एनर्जीज कैसे होती हैं। सो उसके लिए वी यूज द डायगोनल लाइंस। सबसे पहले किसी भी एटम में 1s फिल होगा, सो 1s सबसे पहले फिल होगा, फिर एक और डायगोनल लाइन बनाएंगे, फिर 2s दूसरे नंबर पे फिल होगा, फिर 2p और 3s। जैसे जैसे मैं डायगोनल लाइन बना रहा हूँ, जिस चीज़ को वो कट करते जा रहा है, दैट इज द वन दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। सो इट्स गोइंग टू बी 2p and then 3s. Next one is going to be 3p, 4s. And this is interesting because 3 में D भी है, लेकिन D बाद में फिल हो रहा है, 4s पहले फिल हो रहा है, because when they're empty तो 4s का एनर्जी 3D से कम है। And I told you that the further you go away, the closer these shells become. So 4s का एनर्जी लेवल कम है और 3D का लेवल ज़्यादा है when they're empty. Once it's filled up, फिर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनकी एनर्जी आ जाती है, 4s की एनर्जी 3D से ज़्यादा हो जाती है। Similarly, next one. So in AS, you're usually just asked about this particular point. And then 3D, 4p, 5s. That's how this goes. So 3D, 4p, 5s. Again, you can see कि 4D से पहले 5s फिल हो रहा है, और इससे ज़्यादा हमें वो यूजली पूछता ही नहीं है। बट या इफ़ यू ट्राई टू फिल इट अप, नेक्स्ट वन विल बी 4D, 5p, 6s, then will be 4f, 5d, 6p, 7s, and then of course 5f, 6d, 7p, 8s तक अभी हम गए ही नहीं हैं। हमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा मिला ही नहीं है जो इससे आगे एग्जिस्ट करता हो सकता है कल को बन जाए, एंड साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट, बट सो फार दिस इज द बिगेस्ट एटम दैट वी हैव, और आई थिंक इट्स नेम इज ऑर्गेनेसॉन। सो दिस इज द बिगेस्ट एटम कि जिसमें 7p तक इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और उससे आगे इलेक्ट्रॉन्स अभी तक नहीं है। ओके,
इनफैक्ट आई एम नॉट इवन श्योर कि 7 नहीं, इनफैक्ट 7p तक तो जाते ही हैं. Okay, so we have this. This is how it goes. And of course, you are not required to know the configuration of all the big atoms because once you get to a very big atom, जैसे गोल्ड है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जो हम ए लेवल्स में नहीं पढ़ेंगे. ए लेवल्स में हम ना चीज़ों को बहुत सिंपल लेवल तक, बेसिक लेवल तक सीखेंगे. उनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं करेंगे. आई कैन एक्चुअली सी यू स्माइलिंग थ्रू दैट कि ऐसा नहीं होता, बट ट्रस्ट मी, ए लेवल्स इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी बेसिक स्टफ. ओके, एंड ऑफ कोर्स जब आप इसको पढ़ेंगे वो बेसिक हो जाएगा आपके लिए भी. सो दिस इज हाउ इट गोज. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये 4s पहले फिल होता है 3d से, और 5s 4p के बाद फिल होता है. 5s के बाद 4d पे जाएंगे आप. ओके, सो दैट्स हाउ द कॉन्फ़िगरेशन गोज. ओके, ठीक है, समझ आ गई. s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है. तो s में एक ऑर्बिटल होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो अगर s में 2 होंगे हम उसको लिखेंगे 1s2. 2 उसकी पावर में चला जाएगा विच इज सपोज टू शो कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली इफ़ यू हैव p एंड p के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो अप टू 6 आ सकते हैं. 5 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 3, 2, 1 सारे नंबर्स हो सकते हैं, खाली भी हो सकता है, बट 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हम उसको लिखेंगे 3p4. लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को हम डायरेक्टली 3p4 नहीं कर सकते. वी हैव टू स्टार्ट एट 1s. पहले हम 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को, 3s, 3p, 4s, 3d, 4s, 3d, एंड देन 4p, 5s. अगर 4p तक वो जाए, यूजुअली वो 4s और 3d तक ही रहता है. ओके, ऑलराइट, सो वी हैव दिस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. हाउ डू दीज एनर्जी लेवल्स गो? इसको देखने का एक और तरीका भी है. वी कैन से कि हमारे पास अगर एनर्जी लेवल्स हैं जो कि सबसे कम 1 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 4 है. 1 में हमारे पास है s, 2 में भी s है, 3 में भी s है, 4 में भी s है. फिर हमारे पास p है. 1 में p नहीं होता, 2 में p होता है, 3 में p होता है, 4 में p होता है. फिर हमारे पास 3 में d है. ओके, सो 2 में d नहीं होएगा, 3 में d होएगा, 4 में d होएगा. एंड फिर हमारे पास f है. 1, 2, 3 तीनों में नहीं होगा, इसमें होगा f. सो f, d, p, s, s, p, d, f हमारे पास है. लेकिन दिस इज नॉट हाउ द एनर्जी गोज. हमारे पास ये इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एनर्जी तो हैं, लेकिन इनकी एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि 4s की एनर्जी 3p से थोड़ी सी कम है. सो टेक्निकली दिस इज़ हाउ दे आर. सो 3 में हमारे पास ये 3 है, 2 में हमारे पास ये 2 हैं, 1 में हमारे पास ये 1 है, 4 में हमारे पास इस तरह से है. The energy of 4s is actually less, and energy of 3p is 3d is actually higher. थोड़ी सी higher, ज़्यादा high नहीं है, but that's how it is. If I try to use simple colors, I think things will be much easier to understand. So let's say हम इसके लिए ये यूज़ कर लेते हैं. So this is just one of this. तो इसमें है ही ये. इसके लिए हम ये 2 levels हैं इसके अंदर. There is the s and there is the p. So s की एनर्जी कम है, p की एनर्जी ज़्यादा है, and that's how this one is. तो इसमें हमारे पास ये ऐसे 2 levels हैं. So this is 2s, 2p, 1s. 3 के हमारे पास 3 levels हैं. So 3 में हमारे पास 1, 2 and 3, 3 different levels हैं. And we write them as 3s, 3p and 3d. और 4th में हमारे पास this level is slightly below 4 है, 3d. Okay, and then we have 4p, 4d, 4f. In fact, you will also see कि 5s जो है वो 4 के d से भी नीचे है. So this is the 4d. तो 5f जो है वो
इससे भी नीचे है, और हमारे पास जितने भी 4 के हैं तो 4 में आके हमारे पास इनका डिफरेंस कम होता जाता है, बिकॉज द फर्दर यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द क्लोजर दीज शेल्स बिकम. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि 4s और 3d में 4s की एनर्जी कम है, एंड वंस इट्स फिल्ड अप तब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. ओके, so let's try to fill them up. How will you fill them? Always go for the one that is below them, like the lowest available energy level. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको फिल करेगा, उसके बाद वो हायर लेवल्स पे जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स ओवर हेयर द लोएस्ट लेवल इज़ 1s. सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ आएगा, उसके बाद वो 2s पे जाएगा, फिर 2p पे जाएगा, 3s पे जाएगा, 3p, 4s, 3d, और इस तरह से वो चलता जाएगा. एंड दैट इज़ हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी filled. Okay, and this orbital that is inside there, every subshell has multiple orbitals and they're all in odd numbers. So s में 1 है, p में 3 है, और इन ऑर्बिटल्स को बेसिकली वो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्लाउड का लफ्ज़ आप बार बार सुनेंगे. सो वो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है. ओके, सो दैट्स हाउ दे आर, और शेप्स हमने इसकी डिस्कस अभी कर ली हैं. ऑलराइट, so now they go for the least available energy state because they want to be more stable, and once they do that they're going to do this. So there are 3 main rules that govern this. There's the Offa principle कि सबसे पहले lowest energy level पे जाएगा. There's the Pauli's exclusion principle which says कि वो 2 से ज़्यादा पे नहीं जा सकता. And there's another one which is Hund's rule, जो अभी मैं आपको जब when we try to fill it up तो आपको मैं दिखाऊंगा. Now here's another thing. We take these as boxes. So हम इस तरह से भी करते हैं कि we don't directly show कि भाई हमारे पास ये किस तरह से है. We can actually use box notation to figure this out. We already know what these are. So हमारे पास जो S है 1s एक बॉक्स ये हो जाएगा. Okay? Okay. And then we have 2s which is another box. Okay? Then we have 3 boxes for P. ओके, सो P के हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं. एंड देन वी हैव 3s. सो 3s भी हमारे पास इसी तरह से, और 2p भी हमारे पास इसी तरह से, कि हमारे पास ये 3p के 3 बॉक्सेस हैं. एंड देन वी हैव 4s. 4s के भी, इनफैक्ट आई विल जस्ट मूव दिस टू अ साइड सो वी नो कि ये p है और वो s है. ओके, and this one is 4s, तो ये इसका एक बॉक्स है. and then we have 3d. 3d के हमारे पास 5 boxes हैं. These boxes are basically showing that this is a d orbital, and every box is one orbital. Okay, every box has one level of energy that we are talking about. Okay, so let's try to fill them up. So these are going to be, so let's say first electron, where will that go? The lowest available energy state, or lowest available energy state है 1s. So let's say हम हाइड्रोजन की बात करते हैं. So ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, और अब हम हाइड्रोजन को फिल करने की कोशिश करते हैं. हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन. So where will that go? 1 इलेक्ट्रॉन है, लोएस्ट अवेलेबल स्टेट है 1s, तो 1s में जाएगा, और 1s में वो या तो अपवर्ड एरो से शो कराएंगे या डाउनवर्ड एरो से शो कराएंगे. बेसिकली शोइंग के उसके पास स्पिन या अपवर्ड का है या डाउनवर्ड का है. जो भी स्पिन उसके पास आएगा हम उसको लिख देंगे. यूजुअली हम अपवर्ड एरो शो कराते हैं. डाउनवर्ड भी आप करा सकते हैं, दैट विल बी करेक्ट, लेकिन यूजुअली हम अपवर्ड एरो शो करें. सो हम इसको लिखेंगे कैसे? इट इज़ 1s1, कि पहले शेल के s ऑर्बिटल में यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन. दैट्स हाउ वी विल शो दिस. ओके, सो 1s1. Alright, that's hydrogen. So the lowest available energy state that is easily filled up, that is 1s, तो वो उसको fill कर देगा. Let's take helium, which is the second one. So helium is basically 2 electrons. So the second one goes in helium over here. So now we have 2 in s of first shell. So we'll write 1s2. Okay, now sorry. Let's say now we go on to lithium, which is the third one. So lithium is 3. So first one will go in 1s,
सेकेंड वन विल गो इन 1s क्योंकि उसमें 2 आ सकते हैं, और पॉलिस प्रिंसिपल से इसके 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो द थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू गो इन द लोएस्ट अवेलेबल वन विच इज़ दिस वन. सो थर्ड वन इधर चले जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली 2s. तो हम कहेंगे 1s में 2 है और 2s में 1 है. Basically 1s2 2s1, it shows that the 2s orbital has 1 electron, and again we are using upwards arrow in the beginning. It's not supposed to be like that, it's up to you, and usually by convention we choose the upward arrow first and downward arrow later. Okay, let's pick the next one, that is beryllium. Okay, beryllium has 4 electrons. So where will the fourth go? It will go where there is a space, ये 1s में इधर आ जाएगा. So that is beryllium, and we'll write it as 1s2 2s2, and that's it. You have 4 electrons. There you go. Okay, let's take boron, which is the next one. So boron is 5. So let's see. The fifth one will obviously, it doesn't have anywhere to go, but the lowest available one is 2p. अब 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों की एनर्जी एक जितनी है. वी से दैट दे आर of the same energy level. They are degenerate orbitals. So they are degenerate. They have the same level of energy. So इनमें से वो किसी में भी जा सकते हैं. Again by convention हम उसको पहले में ऐड करने की कोशिश करेंगे. वो कहीं पे भी हो सकता है, but हम उसको पहले में डाल देते हैं. Okay. So that is 1s2 2s2 2p1. Okay, now let's go for the next one, which is carbon. Carbon में 6 electrons होते हैं. So where will the next one go? Now the next one has the option कि वो यहाँ पे pair up कर ले, लेकिन उसमें उसको repulsion feel होगी दूसरे electron की. We call it spin pair repulsion. So if we do this, we'll get spin pair repulsion. So it will avoid that. It will not share until it has no other choice. So it will go in the next one. Again, वो दूसरे में भी जा सकता है, but doesn't matter. दोनों एक जैसे ही हैं. So this is carbon, so we'll say it is 1s2 2s2 2p2. Okay, next one is nitrogen. Nitrogen वाला obviously यहाँ पर जाएगा, and it will be 2p3 at the end. Now the next one, which is oxygen, it has 8 electrons. 7 तो उसकी इसी तरह से आ जाएंगे. The 8th one will have no choice but to actually pair up, क्योंकि वो 3s में अभी जा नहीं सकता. ये 3s है, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा है और लोअर एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं. सो इट विल फर्स्ट गो देयर, एंड देयर इट विल पेयर अप. सो इट कैन गो इन एनी वन ऑफ दीज. हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, एंड विल राइट इट एज 2p4 और उससे पहले वाला सारा. फिर हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाला नेक्स्ट इधर आ जाएगा, एंड लास्टली वी हैव नियॉन, नियॉन इधर आ जाएगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6. और इस सारे को लिखने की बजाय हम इसको नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं. सो वी से ब्रैकेट में Ne का मतलब क्या है, दैट यू हैव 1s2 2s2 2p6, कि आपके फर्स्ट 2 शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, उनके सब ऑर्बिटल्स फिल्ड अप है. ओके, नाउ रिमेंबर, अगर एक में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो वो डीजेनरेट नहीं रहेगा दूसरों की तरह, लेकिन जब वो तीनों खाली हैं या तीनों फिल्ड अप हैं तब वो डीजेनरेट है. ओके, नाउ वेयर विल द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गो? That is for sodium. So obviously it's going to go for the next one, which is stable and which is available, which is 3s. तो वो 3s में आ जाएगा. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, गुड टू सी यू हियर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम याया. ओके, सो ये 3s में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. वो किधर जाएगा? उसके पास भी अगेन 3s में ही ऑप्शन है. दिस इज मैग्नीशियम. सो विल राइट 3s2. अब इसको लिखने के लिए या तो हम लिखें 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 लिखें, या हम लिख सकते हैं Ni कि नियॉन तक तो सारा कुछ नियॉन जैसा है और उसके बाद 3s2 है. ओके, सो दैट्स हाउ इट गोज. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो ऑब्वियसली जस्ट लाइक प्रीवियस वन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एंड दिस इज एल्यूमिनियम. सो विल राइट इट एज 3s2 देन 3p1. फिर उसके अगले वाला विच आई थिंक इज सिलिकॉन, वो इधर आ जाएगा. उसके बाद आई थिंक इज फॉस्फरस, वो इधर आ जाएगा. उसके बाद वी हैव क्लोरीन. नो, वी डोंट हैव क्लोरीन. आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग. खैर व्हाटएवर इट इज, हमारे पास ये इस तरह से हो गए. ये आई थिंक ये फॉस्फरस ही है.
इसके बाद देयर विल बी सल्फर, सो सल्फर विल बी लाइक दिस, इट विल हैव टू पेयर अप क्योंकि 4s अभी तक दूर है, एंड देन सल्फर के बाद हमारे पास क्लोरीन है विच इज़ दिस, एंड देन वी हैव argon which is this, and now we have completed another sub shell. And remember O levels में हम कहते थे कि 8 के बाद वो नेक्स्ट शेल में चले जाएगा. क्यों चले जाएगा उसकी वजह आज समझ आ रही है कि the 4s has lower energy than 3d, so वो जैसे ही 8 फुल करता है उसके अंदर, यानी कि उसका s और p दोनों फिल होते हैं, वो अगले शेल में जंप कर जाता है because it has lower energy. So octet rule in O level was nothing but a simplified version of this. हमने आपको ऑर्बिटल का बताना नहीं था because सिलेबस ने हम पे लिमिटेशंस टीचर्स पे ऐड की होती है, but we just invented the octet rule to simplify कि 8 के बाद वो आगे मूव कर जाता है. Okay, so let's see. Now this is all till argon, और इसको शो करने के लिए हम कह सकते हैं कि we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and all of this is equal to argon's configuration. The square brackets, chemistry में multiple times square brackets आएंगे और उनके different uses हैं, but in this case this shows the configuration of argon, कि argon जैसा ही है बाकी सारा कुछ. Okay, so now the next electron that I put should be in 4s, and this is a point of contention. This is a point that examiner tests. So यहाँ पर अब वो 4s में आ जाएगा, and this is potassium. Okay, so I can write potassium as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s1, or I can just say argon's configuration and then 4s1, and that's the configuration of potassium. तो इसको हम bracket में potassium लिख देंगे कि potassium ऐसा होता है. Next one will be over here, and now we are done with calcium, which was the biggest atom that we saw in O levels. Now let's move on to scandium. This is the realm of transition metals. But they also follow the same rules. हमारे पास Hund's rule होता है जो कहता है कि they will not pair up until they have to. हमारे पास Pauli's rule होता है which says कि वो 2 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकते, और हमारे पास ऑफ-वर रूल होता है which says कि सबसे पहले वो लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी स्टेट को फिल करेगा. 3 रूल्स हैं, उनसे ये सारी फिल हो जाती हैं. सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा? इन पाँचों में से किसी एक जगह पर जाएगा, बिकॉज ये पाँचों हैं डीजेनरेट. ठीक है, इनके एनर्जी लेवल्स एक जैसे हैं, सो वो इधर आ जाएगा. यूजली अगेन हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इनमें से किस में आए, वो कहीं भी आ सकता है. नेक्स्ट वन विल नॉट पेयर अप. हुंड्स रूल सेज कि वो पेयर अप नहीं करते अनटिल दे डोंट हैव अ चॉइस, राइट. सो इधर आ जाएगा, फिर अगला इधर आ जाएगा, फिर अगला इधर आ जाएगा, फिर अगला इधर आ जाएगा, एंड दे कीप ऑन डूइंग दिस until you get to zinc, and this is the configuration of zinc, and usually this is where the questions end. Sometimes you have to go beyond it, but that's fine. हमें अगर S, P, D तीनों को एक एक दफ़ा fill कर लिया है, then you will be able to easily figure out the configuration of the rest of them. Okay, so that is how electrons are arranged. Now electrons arrangement, इसको हम electron configuration बोलते हैं. This plays many important roles in the configuration, in the properties of these atoms, and I would suggest that there will be a worksheet on this. The easiest worksheet that you can do is just pick the first 30 elements and try to write their configuration, try to figure it out. उनको इस तरह से करना ज़रूरी नहीं है कि सारे एक तरह से करो, randomly भी आप कर सकते हो. And now whatever configuration that you get, this is called ground state configuration of these atoms. Okay. What will happen if we form ions? We'll remove electrons, and when we remove electrons, we remove them from the highest first. So it's like stack. उस stack में आपने ऐड करते गए जो टॉप पे है, जब उसको निकालना होगा तो टॉप वाला पहले निकलेगा. जैसे कोई भी स्टैक ऑफ पेपर्स होता है, स्टैक ऑफ कॉइन्स होता है, कोई भी स्टैक है आपके पास, तो स्टैक में जो सबसे पहली चीज़ आपने ऐड की वो सबसे एंड पे निकलती है. इनफैक्ट इफ़ यू स्टडी कंप्यूटर साइंस तो उसमें स्टैक बेसिकली एक मेमोरी स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, दे आर अ स्टैक, दे आर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिमूव किए जाते हैं एटम से और कैसे वो उसमें ऐड किए जाते हैं. एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वी विल कंटिन्यू विद दिस आइडिया, एंड टुमारो आई विल प्रेजेंट कि इस सब के पीछे एविडेंस क्या है, हम क्यों ये सब मानते हैं. अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.